welcome to this unique web series of Sinfe Nazuk se Sinfe Ahan. Sinfe Nazuk se Sinfe Ahan is a platform where we will be talking about the major health challenges our women face on a daily basis. और वहाँ पे हम बहुत से मारूफ और कॉम्पिटेंट प्रोफेसर्स को आपके अवेयरनेस और उन हेल्थ प्रॉब्लम्स के इश्यूज़ डिस्कस करने और उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करने के लिए इनवाइट करेंगे. Today we have got two distinguished guests with us who will be talking about different health aspects जो कि फीमेल्स की ज़िंदगी से गुजरते हैं. एंड ना सिर्फ ये बल्कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम उन ख़वातीन को ट्रिब्यूट पेश करेंगे जो कि सिन्फ़े नाज़ुक से सिन्फ़े अहन का सफ़र तय करके आई हैं और बहुत सी ख़वातीन के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है. वी हैव विद अस डॉक्टर रुबीना सोहेल एंड डॉक्टर तैयबा वसीम. अस्सलाम वालेकुम. हाउ आर यू गाइस टुडे? Thank you very much for being here with us. Dr. Saiba, before we actually jump onto the program, our viewers want to know your achievements. So first I would like to share that with our viewers. So Professor Rubeena Sohail, she's the Obs and Gynae professor at Hamid Latif Hospital. She is the chair FIGO Committee on Women Crisis. She has also been awarded Young Gynae Award in 1994 and Honorary FRCOG in 2019, as well as she's the pioneer of Kangaroo Mother Care. So thank you very much for being with us. And when it comes to Dr. Tayyiba Waseem, she is the professor and head of the Department of Obs and Gynae at SIMS Hospital, Lahore. She is the editor-in-chief of Escalapio Journal of SIMS. She was the youngest professor to be selected across Punjab. She was the ex-principal of SIMS and currently the vice principal of SIMS Services Hospital, Lahore. So thank you very much for being here with us. So Dr. Saab, अब हम अपने प्रोग्राम को before actually we jump onto the health awareness series, I would like to add in a very interesting part जो कि बहुत से लोगों ने हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बात की है, लेकिन यहाँ पे मैं उन चीज़ों का जिक्र करना चाहती हूँ जिसकी बात शायद कभी नहीं हुई और मैं वो सफ़र जानना चाहती हूँ और अपने ऑडियंस को भी बताना चाहती हूँ जो आपने तय किया आपकी अपनी सिन्फ़े नाज़ुक से सिन्फ़े अहन की जर्नी. सो इफ़ वी स्टार्ट विद डॉक्टर रुबीना सोहेल, व्हाट वाज योर जर्नी ऑफ सिन्फ़े नाज़ुक से सिन्फ़े अहन एंड यू बिकेम द एपिटोम ऑफ स्ट्रॉन्ग पावरफुल वुमन? Farheen, first of all, thank you very much for inviting us, and this looks like a beautiful program and a very good platform to talk about our lives. मेरे ख्याल में everybody has a different roadmap for themselves. So जहाँ हम पहुँचते हैं कई दफ़ा वो प्लानिंग के तहत नहीं होता, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हालात ऐसे होते जाते हैं कि you keep on reaching your goals. But I think the most important thing is कि आपको क्या मिला. So क्या मिला से मुराद है कि घर में आपको क्या माहौल मिला. And when you asked this question, I started thinking that what is the right answer. Actually, there is no right or wrong answer, but there are four things that I would like to share. The first thing is that the environment that I got at home, we were four sisters, and my mother was a doctor, father an engineer, and one brother. So उसके अंदर हमारे घर में there was no difference between boys and girls. So we were treated the same way. We were brought up as very strong individuals, very confident individuals. Although जब तक मैं स्कूल में थी मैं क्लास में सबसे खामोश बच्चा थी, जो कि मुझे अब खुद भी नहीं यकीन आता. लेकिन I think the right environment from home. Then when we became doctors, so I think the mentorship of the right people. So people from whom we could learn positive things, and one of the most positive things that I learned was that you need to continue to work hard despite whatever circumstances and be honest with your profession and you will keep on growing. So उसके अंदर कोई formula नहीं है. I don't think there's anybody who can give you a formula. And I think the third thing that I would like to share is that always having a positive approach, trying to make friends. You know, if over 40 years time you make one enemy every year, in 40 years time you will be surrounded by enemies, because enemies are not alone, they have got their own groups. So you have to keep on making friends, you have to keep on making teams, and you have to keep on striving for better and better. और अगर उसमें आप अपने गोल्स को सामने ना रखें, पेशेंट ओरिएंटेड गोल्स को सामने रखें, आप खुद ब खुद अपनी जहाँ पहुँचना चाहते हैं आप खुद ही पहुँच जाएंगे. So I think this is the secret of whatever I did. Persistence, perseverance, happiness, positivity, and not taking no for an answer. I never thought there's anything which I could not do. Being a woman, because in our country being a woman is something that people think कि यार ये औरत नहीं कर सकती. मुझे कभी नहीं लगा था. I never thought of a doctor as a मर्द और औरत. मुझे डॉक्टर लगता था और मुझे लगता था कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ. एंड गॉड हैज़ ब्लेस्ड. अल्लाह मियाँ की ब्लेसिंग के बगैर
कोई भी सफ़र किसी चीज़ का भी पूरा नहीं हो सकता. तो आई थिंक विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड एंड विद थिंकिंग दैट एवरीथिंग इज अचीवेबल, यू कैन डू वट एवर. एंड दैट इज़ द मैसेज फॉर एवरी गर्ल who's striving to become something today, that everything is achievable, but stay positive. Okay. And did it affect your relationships, like your husband, your children, your in-laws? How did you maintain that work-life balance? Farheen, this is such a wonderful area that you have talked about, because you know, when we try to talk of our professions, you have only 24 hours in a day, and in that period of time आपने अपने घर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, families को भी देखना है, and you have to keep on working and maintaining your goals as well. So वाकई work life balance is a challenge, but I think that I was very lucky, because मुझे ये लगता है कि at the end of the day, if I look at myself now, my children, my husband and my in-laws, all very proud of what I do, and they are proud, and they were a part of the journey in which they supported me and helped me, and I think कि आप टाइम निकाल सकते हैं. Not to say anything against anybody who's not working, but घर पे भी काम हो रहा होता है और बाहर भी काम हो रहा होता है. अगर एक हाउस वाइफ अपने बच्चों को टाइम दे सकती है घर के अलावा, तो एक वर्किंग लेडी भी दे सकती है. इट इज़ द क्वालिटी ऑफ टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो आई फील इट इज़ अ चैलेंज, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, स्पेशली फॉर यंगर कपल्स. इस स्टेज पे बैठ के हम कुछ भी कह सकते हैं, बट 25-year-old गर्ल और अ 30-year-old गर्ल हु इज़ ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ फैमिली, ट्राइंग टू वर्क, ट्राइंग टू रीच देयर गोल्स, हस्बैंड को भी खुश रखना है, मदर इन लॉ को भी रखना है, चैलेंज है, लेकिन इट इज़ डूएबल. It is doable, but only if you have a positive state of mind. If you are negative, if you are depressed, you are into negativity, फिर नहीं कुछ अचीव होता. कुछ भी अचीव करने के लिए positive energy and befriending your mother-in-law. Lot of girls nowadays don't want to live with their in-laws, and I would tell them that they are not doing the right thing. They are the best people to have around you, क्योंकि वो आपको घर पे सपोर्ट करेंगे, आपके बच्चों को बड़ा करने में आपकी हेल्प करेंगे, एंड दे लव यू एंड केयर फॉर यू अ लॉट. सो आई थिंक दैट दे आर वंडरफुल पीपल एंड दे शुड बी केप्ट वेरी क्लोज टू यू. And that's the point that I think हर लड़की को ये पता होना चाहिए कि वो आपके बेस्ट सपोर्ट सिस्टम हो सकते हैं. बहुत बड़ा. मैं तो उनके बगैर कुछ हासिल ना करती. अगर मेरे बड़े ना होते, मेरे हस्बैंड ना होते, एंड इवन द चिल्ड्रन, बिकॉज दे आर ऑल्सो सपोर्टिव. They are also supportive, and after a while they actually become your partners. So I think that you cannot go where you are without support from people and help from people. और ख़ास तौर पे गायनोकोलॉजिस्ट, लोगों की मदद के बगैर हम कहीं नहीं पहुंच सकते. हमें बहुत सारे दोस्त चाहिए, रिश्तेदार, दोस्त, जो कि हमें साथ में सपोर्ट करें और हम सब मिलके फिर अचीव करते हैं. So wonderful hearing about your Sinf Nazuk se Sinf Ahan ka safar. So Dr. Tayyiba, so what's your version of Sinf Nazuk se Sinf Ahan ka safar, और इतनी सक्सेसफुल माशाल्लाह प्रोफेशनल वुमन बनने के पीछे क्या राज है? फरीन, it's a journey of sacrifice actually. मैं हमेशा कहती हूँ, ख़वातीन की अचीवमेंट्स में बहुत सारे लोगों का रोल होता है. अपना भी होता है, ज़ाहिर है आप उसके बगैर नहीं कर सकते, लेकिन मैं अगर अपनी इस सिलसिले को शुरू करूँ तो मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी जो मैं अब हूँ. आई वॉज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट चाइल्ड. और मेरे नाना डॉक्टर थे, ही वॉज़ वन ऑफ द फर्स्ट ग्रेजुएट्स ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, और अम्मी डॉक्टर नहीं बनी, मेरे दोनों मामू डॉक्टर थे, और अम्मी को बहुत शौक़ था कि मैं डॉक्टर बनूँ. मतलब अम्मी समहाउ नहीं, हालांकि उर्दू लिटरेचर में उन्होंने किया, शी वॉज़ अ प्रोफेसर थी जब वो रिटायर हुई, लेकिन उन्होंने हम पे बहुत बहुत मेहनत की, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ. और मेरी अम्मी की जिससे जो मेरे अंदर एक चीज़ डली है ना, मेरी अम्मी हमेशा कहती थी कि बेटे थकता नहीं है कोई भी ना. मतलब जब कोई मैंने कहना ना यंग होते हुए कि मैं थक जाती हूँ, अम्मी ने कहना जवान लोग कैसे थकते हैं. अभी पिछले दिनों मैं अम्मी को करती है, अम्मी मैं थक जाती हूँ, तो अम्मी कहती तुम तो अभी बूढ़ी हुई ही नहीं, थक कैसे रही हो. तो ये जो अम्मी की, अच्छा ये बात उस वक्त नहीं आपको रजिस्टर होती. मेरी जब मैं प्रोफेसर हुई तो मेरी फैसलाबाद पोस्टिंग हो गई. मैं फैसलाबाद रोज़ जाती थी, मैं 4 days a week में जाती थी. सुबह जाती थी 7 AM पे, और मैं रात को ना 3:30 में घर वापस आती थी. डेली 2 घंटे ट्रैवल सुबह और 2 घंटे शाम. ये बहुत आदमी नहीं कर सकते, लेकिन मैंने उसके बाद जब आना है, मेरी कमर इतनी थक जानी. मेरी बेटी छोटी होती थी, मैं सोचती मेरी कमर पे खड़ी हो जाओ. कोई 1 साल तो एंथुजियाज्म रहा, उसके बाद मैं डिप्रेस ही होना शुरू हो गई कि मुझे क्या होता जा रहा है. तो मैं किसी से बात करने को दिल ना चाहे, रोने को दिल चाहे. तो फिर अम्मी दोबारा कि अम्मी कहती बेटे हर मुश्किल वक्त गुजर जाना होता है, मुश्किल वक्त तो गुजर ही जाना होता है. तुम देखो, तुम इतनी जल्दी प्रोफेसर बन गई, बहुत सारे लोग तुम्हारे गिर्द बने, तुम्हें कहाँ अल्लाह ताला ने पहुँचा दिया.
यू सी पॉजिटिविटी आपके इर्द गिर्द, जैसे डॉक्टर वीना ने कहा ना, जब लोग जनरेट करते रहे ना, तो और स्पेशली पेरेंट्स आपकी बहुत बड़ी सपोर्ट होते हैं ना, तो वो आपको चीज़ें बुरी लगती नहीं है। जैसे डॉक्टर वीना ने कहा ना, मैं खुद सारी उम्र, मेरे हस्बैंड इज़ द ओनली सन, और उन्होंने मुझे पहली मुलाकात में कहा कि आई विल ऑलवेज लिव विद माई पेरेंट्स, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। उस टाइम तो मुझे इतना रजिस्टर नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जब हम रहते चले गए तो देन आई रियलाइज्ड कि मैं ये सारा कुछ, सुबह में चली जाती हूँ बच्चे छोड़ के। अच्छा, शुरू में मदर इन लॉ से डिफरेंसेस होते हैं, जाहिर है। फिर मेरी अम्मी, एक दिन मैंने कहा अम्मी, मैंने ये क्या, मेरे घर में तो ये चीज़ इस तरह पकती नहीं थी, अम्मी इस तरह करती हैं, उस तरह होता है, ये उस तरह कह दिया। तो मेरी अम्मी ने कहा कि सुबह सुबह बच्चे छोड़ के बिस्तर में तुम आराम से तैयार होती हो और चली जाती हो। कभी तुम्हें फिक्र हुई है कि डे केयर में बच्चों को छोड़ना है, उठाना है, तैयार होना है, कोई 2-4 बातें कर भी ले तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। वो तुम्हारे बच्चों से कितनी मोहब्बत करती हैं और तुम्हारा भी ख्याल रखती हैं, ना तुम्हें खाना बनाना है, ना तुम्हें कुछ। तो इसी ये चीज़ें अल्टीमेटली वो असल में, जैसे डॉक्टर वीना ने कहा ना, पहले 4 साल बहुत शादी के मुश्किल, बच्चे होते हैं आपकी जॉब चल रही होती है। अब सब लड़कियां जो वर्किंग वुमेन है, शादी उसी स्टेज पे करती हैं जब उनकी जॉब्स हैं। अब आपकी ड्यूटीज़ उधर चल रही हैं। प्रोफेसर से तो कोई प्रोफेसर को गर्ज नहीं है कि आप घर पे कैसे हैं, आपने घर जाके बच्चों को सुलाना है, उठाना है। और मदर्स के अंदर एक इनडेट बिल्ट है। आप देखिए, कोई बच्चा बीमार होता है, किसी शौहर के साथ जाता है वो ऑफिस, माँ के साथ ही ऑफिस जाता है ना, माँओं के साथ बच्चे लोग लेकर आ रहे होते हैं और कर रहे होते हैं। शौहरों ने तो सिर्फ, ना उन्होंने प्रेग्नेंट होना है, ना उन्होंने उल्टियाँ करनी है, ना उन्होंने ड्यूटी करनी है। मुझे इसी तरह याद है, जब प्रेग्नेंट हुई पहले एक उल्टी करती थी, फिर जाके ड्यूटी करती थी। मतलब अब आज ये कि ड्यूटी से कितनी छुट्टी थी, हर कोई हर वक्त प्रेग्नेंट होता है वहाँ पे, हमारी सारी लड़कियाँ प्रेग्नेंट, तो किसको छुट्टियाँ मिले इतनी। तो लड़के मज़े से सिर्फ क्रिटिसाइज़ कर रहे होते थे कि जी छुट्टी लो जी, ये फिर प्रेग्नेंट होगी। तो यार तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, हम नहीं होना है ना। मैं तो हमेशा बात एक ही कहती हूँ, तो हमें ऑनर करो कि हम उस प्रेगनेंसी समेत आपके सारे काम शेयर कर रहे हैं और फिर ड्यूटियाँ भी कर रहे हैं, और कोई डिफरेंस नहीं है कि जी हमें कोई छुट्टी मिल जानी है, हमें किसी ने आराम दे देना। जो ख़वातीन कर सकती है ना, वर्क लाइफ बैलेंस, जो आपका सवाल था, ये आदमी कर ही नहीं सकते। इनके घर में खातून ना हो, मुझे आप बताएं, ये बच्चे भी पाल लें, ये ऑफिस भी आ जाएं, ये घर का काम कभी नहीं। ख़वातीन के घर में आदमी ना हो, अगर खुदा ना से किसी भी वजह से, दे विल डू द वर्क, दे विल रेज द किड्स, दे विल मैनेज होम, दे विल मैनेज किड्स and they'll manage office. This is only possible with women. मैं तो बहुत बिलीवर हूँ इस बात की कि अल्लाह ताला ने, हम मेल डोमिनेटेड माशरे में रहते हैं, इट्स अ मैन्स वर्ल्ड। अमेरिका को भी उन्होंने कभी नहीं करने दिया कि कोई खातून उनकी प्रेसिडेंट बन जाए। सिर्फ हम नहीं है ऐसे, ये मैन की साइकी है। लेकिन ये बात सारी ये है कि दैट इज़ अ थिंग के एज वुमेन हमें ये सोचना चाहिए। अब के लड़के मेरा ख्याल है इस चीज़ को बहुत बिलीवर्स भी हैं, हम सब वर्किंग वुमेन भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है हम जो कर सकते हैं ना, अल्लाह ताला ने हमें सॉफ्ट हार्टेड भी बनाया है। अभी कल परसों मुझे कोई कहता है यार आप इमोशनल बड़ी हो जाती हैं, तो मैंने कहा यार जितने भी फैसले हैं ज़िंदगी के, जितने, उनमें से कितने हार्ट से होते हैं आप बताएं। सारे अच्छे फैसले ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस, मोहब्बत से होते हैं। मोहब्बत इज़ एन इमोशन। अगर आप सिर्फ पैसे की बेस पे चीज़ें फैसला शुरू करो, आप ये चीज़ें शुरू करो, 60% ऑफ द वर्ल्ड्स डिसीजंस आर इमोशनल। तो मैंने कहा यार हमसे बेहतर कौन जानता है, और इमोशन हमारे अंदर इसलिए डला है कि हम खातून हैं, माँ हैं, और इसीलिए हम किसी भी ऑफिस में ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिव काम करते हैं। मेरा तो ये बिलीव है। तो आई थिंक आपका जो ये जज्बा है ना, ये आपको जो है ना सिन्फ़े नाज़ुक से सिन्फ़े आन बना। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट वॉट एवर आई वर्क, और मुझे मोहब्बत है अपनी फील्ड से। जैसे डॉक्टर मीना ने कहा कि पॉजिटिविटी के अलावा आई लव गायनाकोलॉजी। मुझे ये ना मिलती, और मैं आई एम हैप्पी, मुझे बहुत मेरी हैप्पीनेस एक्सूट करती है। पिछले मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं मैडम आपकी स्माइल जो है ना उसका बड़ा एक पॉजिटिव। मैंने कहा उसकी वजह है कि आई एम हैप्पी व्हाट आई एम डूइंग। मुझे कोई रातों को उठ के जाना, लहंगा पहन के गए हुए हैं शादी पे और अचानक कॉल आ गई, फिर भागे भागे डिलीवरी करने जा रहे हैं, तो मतलब है कि आई डोंट माइंड इट, क्योंकि मुझे बात ये है कि मुझे पता है कि मेरा ये लाइफस्टाइल है और उसके साथ मैंने एडजस्ट किया हुआ है, और आई फील हैप्पी डिलीवरिंग अ चाइल्ड। कल परसों मुझे एक डॉक्टर, मेरी पेशेंट ने कहा कि आप पहला बच्चा जो ही निकले तो उससे आपने ना फोटो उतारनी है, मैंने बुक पे लगानी है, अभी कॉर्ड भी नहीं काटी उसकी, मैंने फोटो रखी। मैं सबसे ज़्यादा खुद खुश हूँ मास्क के अंदर से भी स्माइल नजर आ रही है। तो यू सी दीज थिंग्स अल्टीमेटली, बट इट इज़ अ जर्नी ऑफ, इट्स अ वेरी टफ जर्नी फॉर मी। मैं जैसे आपसे कहा प्रेगनेंसी, घर, इन लॉज को बैलेंस करना, फिर शौहर को भी खुश कौन से हो तो बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं जब उनका दिल करता है, लेकिन वो आपको सपोर्ट जरूर करते हैं, लेकिन उनकी बहुत सारी डिमांड्स होती हैं जो हमें पूरी करनी पड़ती हैं और करनी चाहिए भी। एंड यू हैव टू लिव अप टू एवरीबॉडीज एक्सपेक्टेशन। हाँ, सबको खुश इट्स अ टफ जर्नी फॉर अस, सबको खुश रखना है, लेकिन आई थिंक कि वुमेन कैन डू इट एंड दे शुड डू इट। मैं हमेशा यंग बच्चों को कहती हूँ कि काम करना नहीं छोड़ना। डॉक्टर्स शादियाँ करा के घरों में बैठ जाती हैं,
नहीं करना चाहिए। इतना टाइम, इतना टेंशन उन्होंने ली होती है, FSC, MD, CAT, कहाँ से वो स्टोरी शुरू होती है, और फिर सिर्फ इसलिए कि शादी हो गई है अब इन लॉज काम नहीं करने देंगे। दे शुड मेक इट अ पॉइंट, बेसिक्स में चली जाएं, कहीं जाएं, पर दे शुड वर्क। सो डॉक्टर साहिबा, बच्चे फिर आपके क्या समझते हैं कि आप उनकी अम्मी इतनी ही सक्सेसफुल मदर है जितनी एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे तीनों बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं और 2 तो बन गए अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा भी बन रही है, तो इसका मतलब है वो मुतासिरीन में नहीं है, मुतासिर है जो ये प्रोफेशन मुतासिर है, बिल्कुल इंस्पिरेशन ये लिया कि अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बॉन्डिंग है मेरी उनके साथ, बाकी अल्लाह ताला की तो ज़बरदस्त। ये तो बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी थी ना, आई एम श्योर बहुत से लोग इससे जो है ना थकने वाली कहानी सबसे बड़ी, थकना नहीं है यंग बच्चों ने। मैं लड़कियों को कहती हूँ खजूर खा लो, अब बच्ची आती है ना हाउस जॉब करने, हम थक गए, मैंने कहा नो थकना। हाँ, तो अच्छा, अब ज़ाहिर है ख़वातीन का ये जो अभी मैं चूँकि बच्चों की बात करी थी तो आपने उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी करी कि वो आपसे इंस्पायर्ड है, और विमेन का रोल भी ऐसे ही है कि वो पूरी सोसाइटी को इंस्पायर करती है, उसको डेवलप करती है। तो विमेन हेल्थ से रिलेटेड बात करते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज़ दिस विमेन हेल्थ, अगर आप उसके प्रोफेशन को देखें, उससे रिलेट करें कि कितना इम्पोर्टेंट है अपनी हेल्थ को मेंटेन करके। और फिर देखो ये बात ये है कि जो भी चीज़ है ना, आप, मैं 2 बातें अल्लाह ताला पे हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह ताला की 2 मेहरबानियाँ बहुत बड़ी होती हैं, एक हेल्थ और एक औलाद। ये मेरे लिए हमेशा से मैं सोचती हूँ कि 2 चीज़ें अल्लाह ताला की बहुत बड़े एहसानात हैं हम पर। हेल्दी जब तक आप नहीं होंगे, आप मुझे बताएं ये कोई भी काम कैसे कर सकेंगे। मेरी एक फ्रेंड है तो बड़ी नेगेटिव बातें करती रही कुछ अरसे तक ना, डिप्रेस्ड, के मियाँ भी अच्छा सा है, 2 बच्चे हैं, सक्सेसफुल है। तो मैंने एक दिन उससे कहा, मैंने कहा तुम अपना, मुझे लगा पेल है, मैंने उसका हीमोग्लोबिन, मैंने कहा तुम्हारा हीमोग्लोबिन कम है, कहती हाँ मुझे बहुत मेनोरेजिया होता है, लेकिन उसका 7 हीमोग्लोबिन निकला। अच्छा, मैंने कहा तुम 2 ब्लड So that was the reason of her low. रीजन ऑफ हर डिप्रेशन। Yeah. मतलब उसको 2 ब्लड लगे, उसका मेनोरेजिया, हमने HP करेक्ट किया, उसके जो भी मसले थे उसको सेटल किया, अब वो सारी पॉजिटिव बातें करती है, वो बिल्कुल खुश है, खुशी खुशी तो उधर जाती है, सैरे भी करती है, शौहर भी अच्छा हो गया, अचानक मेरे बच्चे भी अच्छे हो गए। तो यू सी हेल्थ हमारी, ये जो हम सारी एनर्जी है ना, ये आपकी HB से, अगर आपका हीमोग्लोबिन ठीक है, आपका ब्लड फ्लो ठीक है, आपको और कोई वो नहीं है, तो ऑब्वियसली आप अपना बेस्ट आउटपुट देंगे। लेकिन अगर आप बीमार होंगे, आप अपनी हेल्थ पे तवज्जो ही नहीं देंगे, तो डिप्रेशन अल्टीमेटली होना शुरू होगा। साहब, एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव एक्चुअली मेंशन्ड। तो क्या लगता है कि सारी जो विमेन हेल्थ को अगर हम थोड़ा सा असेस करें तो उसमें सबसे बड़ा हेल्थ चैलेंज एनीमिया ही है? एनीमिया ही है। अभी तो आपको यहाँ ये लग रहा है ना, आप कभी RHC BHU में जाके देखें, वहाँ जो ही आप लाहौर शहर से बाहर निकलें, थोड़ी सी फ्लुएंट क्लास से, वहाँ पर किसी भी औरत का हीमोग्लोबिन 9 से ऊपर नहीं। इतना ज़्यादा एनीमिया है हमारे यहाँ, और उसकी वजह वही है न्यूट्रिशन और बच्चे पे बच्चा। फैमिली प्लानिंग का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे में, और डॉक्टर बीना तो इतने बड़े चैम्पियन है फैमिली प्लानिंग के। मेरा ख्याल है हम दोनों ने जितनी रेस की है इस पर वॉइस, मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब में किसी और ने भी इस पर काम भी किया होगा। और हम जब शुरू किया तो सबने कहा कि यार गायनाकोलॉजिस्ट हो के क्यों फैमिली प्लानिंग की बातें करते हैं, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी। मैंने कहा यार रोज़ी रोटी अपने हाथों में थोड़ी रखी है। और दूसरी बात ये है कि विमेन हेल्थ इज़ लिंक्ड टू स्पेसिंग। 3 साल का वक्फा आपने देंगे बच्चों में तो आपकी हेल्थ होगी ठीक। 3 साल से कम पे आप किसी सूरत, मतलब अल्लाह ताला ने भी कहा है 2 साल दूध पिलाएं, 2.5 साल उसके बाद बच्चा करें। मतलब उससे बड़ी हिकमत हमें कोई क्या बता सकता है, कुरान जो बता रहा है। अलॉन्ग विद दीज मल्टीपल प्रेगनेंसीज, और क्या ऐसे रीजंस हैं डिस्पाइट हैविंग ऑल दी थेरेपीज अवेलेबल फॉर पाकिस्तानी वुमेन, फिर भी ये इंसिडेंट्स है? फॉर इंस्टेंस इफ आई से कि 7 out of 10 women are anemic in Pakistan, सो ये इंसिडेंट्स अभी भी उतना ही क्यों हैं? और क्या पेशेंट कॉम्प्लाइंस का इशू है, या कंजम्पशन का इशू है, या स्क्रीनिंग का इशू है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? या ये बहुत ही डिफ़िकल्ट, मतलब उसकी वजह ये है कि ख़वातीन अपने, अब देखिए जो यंग बच्ची है ना, उनका मसला है कि उन्होंने पतले रहना है। आप मुझे, मेरे तो जितने पेशेंट हैं कोई मटन खाता ही नहीं है, वो सब चिकन खाते हैं, है ना। ये भी बेटी चिकन ही खा रही है, मटन खाने की तरफ तो आता है कोई नहीं है। अब मटन और बीफ खाएंगी नहीं तो बेस्ट सोर्स ऑफ आयरन तो एक्चुअली मटन और बीफ है ना। एनिमल सोर्सेज आर द बेस्ट सोर्सेज, आपकी वेजिटेबल्स आर इन्फीरियर सोर्सेज। तो यंग लड़कियों का तो ये मसला है कि उन्होंने ये नहीं खाना, अब वो चिकन बर्गर और पास्ता और इस किस्म की चीज़ें। और जो बाकी पुअर क्लास है उसके पास तो अफोर्डेबिलिटी वैसे नहीं रहेगी, तो चीज़ें, महंगाई, खाना, न्यूट्रिशन, ऊट पटांग रातों को लेट जागना, ये सब लिंक्ड है इस एनीमिया से। एनीमिया से तो डाइट इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर जो कि आज भी एनीमिया को इसलिए हम नहीं कॉम्बैट कर पा रहे फर्स्ट से। और क्या ऐसा भी है कि लोग जो थेरेपीज़ अवेलेबल हैं उसको भी सही तरह से नहीं कंज्यूम करते? फॉर इंस्टेंस सप्लीमेंट्स
हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। जबकि मैंने वेस्ट में देखा है कि आयरन सप्लीमेंट्स, कैल्शियम सप्लीमेंट्स वो उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, उनकी डेली रूटीन का, उनके लाइफस्टाइल का पार्ट है, जो शायद अब तक हम नहीं कर सके अपनी फीमेल्स में। हमारे यहाँ समहाउ नहीं करते लोग, मतलब वो उनको फैट्स बहुत हैं। गोरे रंग का कितना फैट है, क्योंकि दवाई खाएंगे तो काले हो जाएंगे, बच्चा काला पैदा होगा, पता नहीं माँ बाप पे जाने बच्चा कहाँ काला पैदा होगा, लेकिन उनके समहाउ ये फूड फैट्स और दवाइयों के मिथ्स बहुत मिथ्स है ना, और यही वजह है कि वो मिस इन्फॉर्मेशन जो है ना वो उनको मिसलीड कर रही होती है। और वो हमारे यहाँ मिथ्स तो सबसे पहले फैलती है ना, एक्चुअल बातें कम फैलती है। कोविड ही देख लें आप, कितने मिथ्स थे, कितने अरसे तक लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई, कितने अरसे तक और कुछ नहीं किया, लेकिन और मिथ। तो डॉक्टर साहबा, अगर आपसे पूछूं तो आप भी अपनी डेली रूटीन में ओपीडी में इतना ही बड़ा इंसिडेंट्स देख रही होती हैं जैसे डॉक्टर तैयबा ने बताया अभी। I will start with Tayyiba left off. She said something very important about contraception, और चूंकि आई थिंक कि ऑडियंस को ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। ऑब्वियसली बेसिक एस्पेक्ट ये है पुअर न्यूट्रिशन, जहाँ अफोर्डेबिलिटी है वहाँ डाइट सही नहीं है, जहाँ अफोर्डेबिलिटी नहीं है वहाँ भी डाइट सही नहीं है, बिकॉज दे कांट अफोर्ड टू टेक द मीट्स एंड स्टफ and the right food which is going to bring up their hemoglobin. स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स नहीं है, ऑल्दो पीपल आर गोइंग फॉर एंटीनेटल केयर, लेकिन उस एंटीनेटल में वो कितनी दफ़ा स्क्रीन होते हैं फॉर एनीमिया ये हमें पक्का नहीं पता, कोई डेफिनेटिव प्रोग्राम्स फॉलो नहीं करते। फिर उसके बाद जब उन्हें पता चल जाता है तो द आयरन दैट इज़ प्रिस्क्राइब्ड, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वुमेन आर वेरी पुअर टू फॉलो अप, तो वो प्रिस्क्राइब हो गई आयरन, बट दे आर नॉट गोइंग टू टेक आयरन, दे आर गोइंग टू लीव इट। और इफ़ दे टेक इट तो वो ज़्यादातर चाय के साथ ले रहे हैं या खाने के साथ ले रहे हैं या ऐसे ले रहे हैं कि दूध के साथ ले रहे हैं, अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही ऑफ द ड्रग। इन सब चीज़ों के साथ जो दूसरा एस्पेक्ट डॉक्टर तैयबा ने हाईलाइट किया, विच इज़ अबाउट द birth interval which is very less. So on one hand there is a problem with nutrition, on the other hand we are not giving time to our body to build up the nutritional status and come back to a normal hemoglobin before we go for another pregnancy. So वो जो hemoglobin डिलीवरी में कम हुआ होता है उसको दोबारा बिल्डअप करने की बजाय वो दोबारा प्रेग्नेंट हो जाते हैं और फिर वो उसको लेबल करते हैं कि ये अल्लाह की मर्ज़ी थी। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो हम कहीं जा ही नहीं सकते, बट एज पीपल हु आर ह्यूमंस और हमें कुछ सेंस एंड सेंसिबिलिटी है, वी शुड बी यूजिंग मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन ताकि हम 3 साल का यंग लड़कियों में वक्फा दें जिसमें वो अपनी हेल्थ के ऊपर और अपने बच्चे की हेल्थ के ऊपर काम करें। क्योंकि जहाँ ये ज़रूरी है कि माँ अपनी हेल्थ को बिल्डअप करे, अपने एनीमिया को ठीक करे, वहाँ ये भी ज़रूरी है कि वो बच्चे की नशोनुमा में भी पार्टिसिपेट करे। बच्चा पैदा करके छोड़ना नहीं है, वी हैव टू पार्टिसिपेट इन देयर ब्रॉट अप। सो आई थिंक कि ये सारा जो है ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, और एनीमिया जो है एज तैयबा सेड दैट इट डज नॉट लेट द वुमन वर्क to her normal performance or up to par. So जो ख़वातीन जो हैं जो एनीमिक हैं, as you said that almost 70% women in Pakistan are anemic, तो क्या वो सोसाइटी का उसी तरह से हिस्सा हैं जिस तरह से एक प्रॉपर हीमोग्लोबिन वाले हैं या नॉर्मल हीमोग्लोबिन वाले हैं? द आंसर इज़ नो. So they are going to be tired, they are listless, they are not interested in activities at home, they are not interested in bringing up their children, और वो हर वक्त थके हुए हैं, और जो ही उनका हीमोग्लोबिन ठीक होता है they behave like different people. तो डॉक्टर साहिबा, यहाँ स्क्रीनिंग का बहुत बड़ा एक रोल है जो आता है, तो आपको क्या लगता है कि आप क्या अपने व्यूअर्स को एडवाइस करना चाहेंगी कि कितनी फ्रीक्वेंटली लोगों को स्क्रीन करना चाहिए? हमारे मुल्क में ये ज़रूरी है कि सब यंग लड़कियों को, इंक्लूडिंग द वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, यानी जो हामला हो सकती हैं ख़वातीन, उन सब को जो है वो वर्म्स के अगेंस्ट ट्रीट करना चाहिए. सो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन or one of the common causes of anemia. That is number 1. Number 2, when a woman becomes pregnant, she must be screened in the first trimester for hemoglobin. तो प्रेगनेंसी में कम से कम 3 से 4 मरतबा, 3 मरतबा मैं कहूँगी ज़रूरी है एटलीस्ट वंस इन एवरी ट्राइमेस्टर कि हम हीमोग्लोबिन को इवेलुएट करें, और हीमोग्लोबिन डिलीवरी के वक्त 11 होना चाहिए. अगर 11 से कम हीमोग्लोबिन है तो द लेडी इज़ एट रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उनको स्क्रीन करें, उनको बिल्डअप करें, और डिलीवरी के वक्त 11 हीमोग्लोबिन हो. इस वक्त पाकिस्तान का जो एंटीनेटल रेट है वो पहले से बहुत बेहतर हो गया है, जिसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें एंटीनेटल केयर ले रही हैं. सो उस एंटीनेटल केयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये ज़रूरी है. सो लेट्स से इफ आई से कि हमारी 70% औरतें जो हैं दे आर टेकिंग एंटीनेटल, इफ़ द एंटीनेटल इज़ अ गुड क्वालिटी तो हमारा 70% रिडक्शन हो जाना चाहिए इन एनीमिया. दैट इज़ अ साइन कि हम अच्छा एंटीनेटल केयर दे रहे हैं. तो इन चीज़ों को भी देखना चाहिए गवर्नमेंट को कि अगर हमारा एंटीनेटल केयर रेट बढ़ रहा है तो एनीमिया क्यों नहीं ठीक हो रहा. तो इसका मतलब है हम स्क्रीन और ट्रीट नहीं कर रहे.
इसके बारे में हमने स्क्रीनिंग की बात करी, लेकिन नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स, यंग फीमेल्स, उनको कितनी फ्रीक्वेंटली स्क्रीन करना चाहिए अपने आप को? So उनके लिए कोई definitive, I think there is no definitive rule for screening them, but I think that it is very important कि वो लड़कियां जो थकी रहती हैं, listless रहती हैं, Taiba gave a very good example of the lady who was unhappy with her circumstances. So if people are suffering from these kind of things, they must be tested. So whatever their age, if you feel that the girl is tired all the time, she is listless, she doesn't want to participate in activities, I think उनको टेस्ट करना चाहिए. वैसे आजकल स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स ख़त्म हो गए हैं ऑलमोस्ट. स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत I think that the girls who are in school could be tested once every year to see whether their hemoglobin is up to par or not. Those who have already hit the puberty, especially Yes. those women, those especially girls the should ones be who have hit screened. the puberty should be screened for anemia. College girls and school girls जो school भी हैं. girls. जी, इस पे फिर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये हमारे यहाँ जो मिथ्स है ना, कुछ एक्सेसिव ब्लीडिंग का, कि खून खुल के पड़ना चाहिए, ये बहुत बड़ा मिथ है. ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम बहुत मतलब थोड़े मतलब एक पैड सोक करें या एक दिन ब्लीडिंग हुई तो वो लोगों को लगता है कि ये गलत है. हालांकि ये गलत नहीं है. एक्सट्रीम्स ऑफ यानी कि स्टार्ट जब होते हैं पीरियड्स, और जब 45 to 55 की एज आती है ना, उस पर हैवी फ्लो होने का चांस बहुत होता है. और उसमें क्योंकि आपका जो आपका हार्मोनल प्रोफाइल है वो इस तरह से हो रहा होता है कि उसकी वजह से ऐसे होता है. उसमें भी हैवी पीरियड्स इज़ एन एबनॉर्मेलिटी. ये क्लियरली सबको पता होना चाहिए कि हैवी पीरियड्स इज़ ऑलवेज एन एबनॉर्मेलिटी, और उसके लिए बहुत अच्छी सेफ चीज़ें अवेलेबल हैं, उनको करेक्ट करना चाहिए रादर देन फीलिंग अबाउट इट कि ये तो ख़त्म होने वाले हैं. बट 365 डेज़ हैं ज़िंदगी एक साल के, और उन्होंने 10 सालों में शायद कहीं ख़त्म होना होगा. तो वो आप 10 साल अपनी इल हेल्थ के साथ गुजार दें सिर्फ इस वजह से कि वो ठीक नहीं होगा या वो ये एक नॉर्मल बात है. तो इसकी वजह से भी हमारे यहाँ बहुत एनीमिया है. मतलब लोग उसको रियलाइज़ नहीं करते कि उनकी इल हेल्थ और मेनोपॉज के करीब वैसे ही थोड़ी सी बॉडी चेंजेस से डिप्रेशन और थोड़ी सी अपनी बॉडी सेल्फ के लिए लोगों को एक डिफरेंट चेंज आना शुरू होता है कि हमारे से थोड़ी सी स्किन की बॉडी चेंजेस आनी शुरू हो जाती है. उसमें जब ये ऐड हो जाती है ना चीज़, तो आप यकीन कीजिए इट इज़ इम्पेयरिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ वुमन, और उनको अंदाज़ा नहीं होता. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपके प्रोग्राम के हिसाब से मैसेज देना चाहेंगे कि वेन एवर यू हैव हैवी पीरियड्स या ज़्यादा उनका फ्लो है तो उसको कम करने की बेशुमार अच्छे ऑप्शंस हैं. उनको कम ही रखिए, वो अपने टाइम से ही बंद हो. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो जितनी डिस्टर्ब होती है, और वो दोनों तरफ, चाहे पुबर्टी हो चाहे मेनोपॉज हो, दोनों अगर आप एरियाज़ पे देखें तो डॉक्टर साहबा क्या थेरेपीज़ हैं जो कि आप रिकमेंड करना चाहेंगी, अपने लोगों पेशेंट्स को बताना चाहेंगी व्हाट काइंड ऑफ थेरेपीज़ दे शुड गो फॉर बिसाइड्स हार्मोन, जो कि आपका रूटीन का कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट होता है एनीमिया को ट्रीट करने के लिए? किस तरह की थेरेपी? अच्छा, उसमें एनीमिया की ट्रीटमेंट के लिए ना हमेशा से 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, बल्कि 3. एक है प्रिवेंशन, कि जो चीज़ उसको कॉज कर रही है उसको ट्रीट करें. ठीक है, जो भी ट्रीटमेंट है उसके लिए आपकी मेडिसिन हैं, ऑपरेशन है, वट एवर देर इज़ ऑलवेज है. और देखिए जैसे कभी किसी को पित्ते में पथरी हो ना, फ़ौरन जाके निकलवा देते हैं. यूट्रस में फाइब्रॉइड्स है, रख के बैठे रहेंगे कि शायद बंदी हो जाने. एनी डिजीज ऑर्गन नीड्स टू बी टेकन आउट, उसमें कोई हर्ज नहीं है, हर चीज़ का इलाज है. ठीक है. दूसरी चीज़ है डाइट पे तवज्जो हम लोग नहीं देते. जैसे मैंने आपको पहले कहा, अब हमारा बहुत सारी हेल्दी डाइट्स हैं. यंगर लड़कियों के अपने मसाइल हैं, लेकिन आयरन रिच डाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका अब तो हर चीज़ नेट से कैलकुलेट हो जाती है, कितने कैलोरीज कम के बावजूद आप वो डाइट ले सकते हैं. तीसरी चीज़ है आपकी सप्लीमेंट्स. सप्लीमेंट लेते हुए बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए. यकीन कीजिए, आप अमेरिका जाएं, 50+ के सप्लीमेंट, 30+ के सप्लीमेंट, 40+ के सप्लीमेंट पड़े हुए हैं. आखिर पड़े हुए हैं कोई वजह, ओवर द काउंटर सेल हो रहे हैं. दूसरी बात, जितना भी आयरन लॉस होगा, अगर आप उसको अगले महीने, वो फिर लॉस हो जाएगा. या तो ना आपका ख्याल है कि अगले महीने कुछ नहीं होना, वो फिर लॉस हो जाएगा, तो आप इधर से कुछ डालें और उधर से निकालते जाएं, उसका मसला तो हल नहीं होने लगा. तो सप्लीमेंटेशन स्टोर्स को रिप्लेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है. जो भी हम आयरन सप्लीमेंट किसी को कहते हैं, हम कहते हैं एटलीस्ट 3 मंथ्स लें, क्योंकि आपका अब जो लेना शुरू करेंगे वो कुछ टेम्परेली एक्ट करेगा और उसके बाद 3 मंथ्स उसको स्टोर रिप्लीट करने में भी लगने हैं. चौथी चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ, विद एज, बल्कि फॉर एवरी एज, यू शुड गिव टाइम टू योर सेल्फ फॉर एक्सरसाइज. अब मोबाइल ऐप्स हैं, घर में मौजूद है, ठंडे कमरे में कर सकते हैं अगर आपके पास बाहर कोई फैसिलिटी नहीं है. लेकिन विद आफ्टर 45 में हर एक को कहती हूँ कि आप प्लीज़ कुछ देर अपना 30 मिनट्स अ डे एक्सरसाइज के लिए ज़रूर निकालें.
आई थिंक दैट इज़ अ हेल्दी लाइफ। तो डॉक्टर साहिबा, अगर मैं आपकी तरफ आऊँ और हम बात कर रहे थे, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया था कि जैसे एनीमिया से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस और स्पेशली इन प्रेगनेंसी, सो उसके बारे में क्या ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो ख़वातीन की ये मिथ्स हैं कि जी बच्चा काला हो जाएगा और वो आयरन नहीं लेती, तो वो किस तरह के नुकसान से गुजर सकती हैं अगर वो आयरन ना लें? तो मेरे ख्याल में अगर मुझे एक मैसेज देना हो तो दैट मैसेज वुड बी कि अगर हीमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं होगा तो द वुमन इज़ प्रोन टू ब्लीडिंग एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। हम डॉक्टर्स उसको पोस्टमार्टम हेमरेज कहते हैं और आम ज़बान में उसको कहते हैं कि डिलीवरी के बाद खून का पड़ना। एज तैयबा सेड वेरी अप्रोप्रिएटली कि लोगों को ब्लीडिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि ये क्लियर हो रहा है सारा कुछ, सो हमें जो है दिस इज़ नॉर्मल। दिस इज़ नॉट नॉर्मल। जितना हीमोग्लोबिन कम है उतना रिस्क ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज यानी ब्लीडिंग एट द टाइम ऑफ डिलीवरी बढ़ जाता है। नाउ द अनफॉर्चुनेट थिंग इज दैट पोस्टमार्टम हेमरेज रिजल्ट्स इन मैटरनल डेथ। एंड इफ़ यू लुक एट पाकिस्तान स्टेटिस्टिक्स, तो पाकिस्तान में जो माओं की शरह अमवात है उसकी सबसे बड़ी वजह पोस्टमार्टम हेमरेज बिकॉज ऑफ यूट्राइन एटोनी है। यूट्राइन एटोनी होती है बिकॉज of other factors as well, but one of the important factors is lack of enough hemoglobin. सो जब हीमोग्लोबिन लो होगा उसमें रिस्क ऑफ ब्लीडिंग ज़्यादा होगा, और चूंकि हीमोग्लोबिन कम था बॉडी के कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म्स नहीं काम कर रहे, दैट इज़ वाई इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग फॉर द वुमन। सो हर प्रेग्नेंट औरत को इस बात की समझ होनी चाहिए कि डिलीवरी के वक्त उसका हीमोग्लोबिन 11 होना चाहिए। हमने सर्विसेज हॉस्पिटल में एक बड़ा अच्छा प्रैक्टिस शुरू की थी दैट एट 7 months ऑफ प्रेगनेंसी वी वुड चेक द हीमोग्लोबिन ऑफ एवरी वुमन who presented to us, और जिनका हीमोग्लोबिन 11 से कम होता था हम उनको इंजेक्टेबल आयरन कैलकुलेट करके कि उनको कितनी ज़रूरत है उनको हम दिया करते थे फ्रॉम द हॉस्पिटल। और उससे फ़ायदा ये हुआ कि जो हमारे बुक पेशेंट्स थे यानी जो रेगुलर एंटीनेटल करवा रहे थे, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी देयर हीमोग्लोबिन वुड ऑलवेज बी अबव 11 बिकॉज दे वर दोज पेशेंट्स जिनका हमने हीमोग्लोबिन बिल्डअप किया हुआ था। उसका फ़ायदा ये है कि द कॉम्प्लिकेशंस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस। और आई थिंक कि अगर कोई मैसेज ऐसा हो जो कि आज की हमारी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है इसमें से कोई किसी को जाना चाहिए ऑफ एनी लेडी हु इज़ प्लानिंग अ प्रेगनेंसी इज़ हीमोग्लोबिन शुड ऑलवेज बी 11, not less than 11. So I think this is very important, and this is important not only from personal perspective but from the country statistics perspective as well कि हम सारे मिलके अपनी माओं की शरह अमवात को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इतनी सी इंटरवेंशन है, it's not expensive, it doesn't need big maneuvers to do it, सिंपल चीज़ है अपनी अवेयरनेस और जो डॉक्टर जिनके पास वो विजिट कर रही हैं या मिडवाइफ वो इंश्योर करें कि हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो डिलीवरी के वक्त। तो डॉक्टर साहब, कोई एक ऐसी चीज़ अगर आप ये बताना चाहें कि हमें अनीमिया से ये जो फाइट है उसको उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो सारी ख़वातीन करें सो दैट वी एंड दिस प्रॉब्लम, तो और बल्कि ये भी सवाल होगा कि कैन वी एक्चुअली एंड दिस इशू? Yes, we can. And the most important thing in that regard is to have a sense that our hemoglobin should be normal. So जब तक हम इस बारे में कॉन्शियस नहीं होंगे, मैं बड़ी प्रोपोनेंट टू कॉन्ट्रासेप्शन की। इफ़ आई हैव टू से वन थिंग फॉर मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया आई विल से स्पेस आउट योर चिल्ड्रन। 3 साल से पहले आप बच्चा ना पैदा करें, आपका 50% प्रॉब्लम तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। सो इफ़ देर इज़ वन मैसेज विच हैज़ टू गो, दैट मैसेज विल बी कॉन्ट्रासेप्शन, birth space for 3 years. But if I can say something else, I think it is very important to be conscious of the fact कि हमने अपना हीमोग्लोबिन अपनी रिप्रोडक्टिव एज में एक दफ़ा ज़रूर चेक करवाना है, एंड वी हैव टू इंश्योर दैट आवर हीमोग्लोबिन रिमेन्स 11। सिंपल मेडिकेशन है जिनसे वो 11 रखा जा सकता है, सिंपल खाने हैं जिनसे रखा जा सकता है। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स विच कैन हेल्प अस। यू ओनली हैव टू गो टू एन OPD एंड टेल द डॉक्टर दैट दिस इज़ अ प्रॉब्लम, तो हॉस्पिटल से भी आपको मेडिकेशन मिल जाती है विच विल ब्रिंग अप थिंग्स। तो क्या रेंजेस होती हैं प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कि भाई हमें एटलीस्ट इतना कंज्यूम करना है थ्रू डाइट, थ्रू सप्लीमेंट, डेली बेसिस? देखो बात यह है कि इफ़ यू ट्राई टू टेल women how many grams or how much to consume, that's very difficult. But the best advice is to have a balanced diet with appropriate amount of iron either from meat source or from वेजिटेबल एंड पल्सेस। सो जो लोग मीट अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए पल्सेस के अंदर भी अवेलेबल है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था कि वर्म इन्फेस्टेशन को देख लें, वर्म्स को देख लें, डीवर्म कर लें, ताकि ये ना हो कि आप तो डाइट ठीक ले रहे हैं बट बिकॉज ऑफ द वर्म्स देयर इज एनीमिया। सो पाकिस्तान में काफ़ी कॉमन है बिकॉज ऑफ द पुअर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़। सो वी हैव टू लुक एट दैट एस्पेक्ट एज वेल, इट्स इम्पॉर्टेंट।
एक्चुअली सो डॉक्टर साहिबा, वन लास्ट क्वेश्चन एंड देन आई थिंक हम इतना सारी चीज़ों को कवर कर चुके हैं इतने छोटे से टाइम में। आपका भी बहुत कीमती टाइम हमने लिया कि आजकल इंजेक्टेबल आयरन थेरेपीज़ भी बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रही हैं, तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका कि कैसे कितना फ्रिक्वेंटली उसको यूज़ करना चाहिए और क्या इज़ इट हेल्दी नॉट? मैं एक बात बताऊँ, कई दफ़ा लगता है कि शायद आप ओवरबोर्ड जा रहे हैं, बट आई थिंक दैट इट इज़ द नीड ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ कपल ऑफ थिंग्स। पहली बात ये, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ख़िलाफ़ बहुत सारी उसकी साइड इफ़ेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं। हमारे एनीमिक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? आयरन अब्जॉर्प्शन के इश्यूज हैं कुछ में। मैं ये नहीं कह रही दैट द इंजेक्टेबल्स शुड बी द ड्रग ऑफ चॉइस, बट आई एम सेइंग दैट वेयर टाइम टू डिलीवरी इज़ लेस एंड वेयर योर वुमेन आर एनीमिक इन अ सिग्निफिकेंट फैशन कि आप उसको ब्लड नहीं देना चाहते और ओरल आयरन को टाइम लगेगा बिल्डअप करने में, इंजेक्शंस आर द प्लेस टू बी। सो इफ़ यू यूज़ द इंजेक्शंस जुडिशियसली in the right dose and in the right amount and monitor them for reactions of drug, I think that they are the way to go. मुझे तो उनकी they've got a very good place for our women, क्योंकि एनीमिया को ठीक करने के लिए, जैसे मैंने आपको अपनी सर्विसेज हॉस्पिटल की एग्जांपल दी थी, it worked wonders for us. और वो जब हमने शुरू में इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करने शुरू किए, वी हैड एन ऑडिट ऑब्जेक्शन एंड समबडी सेड व्हाई आर दे यूजिंग सो मेनी इंजेक्शंस, एंड द सिंपल आंसर वाज दैट बिकॉज देयर इज सो मच एनीमिया इन आवर पॉपुलेशन. And previously probably we were not doing anything about it. So I think injections are here to stay. So we talked about a lot of things. अगर मैं इसको sum up करना चाहूँ कि birth spacing बहुत important है, diet बहुत important role play करती है anemia की prevention में, supplements का यूज़ बहुत ज़्यादा important है. Similarly अगर देखा जाए तो iron की जो different sources हैं उसको किस तरह से utilize किया जाए वो बहुत important है. जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि meat का होना बहुत ज़रूरी है हमारी डाइट में. सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी ख़वातीन को शायद हेल्प कर सकती हैं और आपको हेल्प कर सकती हैं एनीमिया एरेडिकेशन इनिशिएटिव में, जो हमने एज जो टीम अप किया है हमने एक दूसरे के साथ, ताकि हम इसको जो है एनीमिया को पाकिस्तान से ख़त्म करें. तो I think that's a wonderful talk that we actually had today with both of you. और thank you very much. Thank you Fareen for inviting us on this very important. I must congratulate, जैसे डॉक्टर वीना ने पहले शुरू में कहा था कि I must congratulate you all for initiating it. और actually सिन्फ़े नाजुक से सिन्फ़े आहान वाली जो really it is a very जैसे दिल को लगी बात, वो मतलब वरना तो टाइम निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन ये दिल को लगी कि वाकई हम सिन्फ़े नाजुक ही थे कभी, अब वाकई सिन्फ़े आहान बन चुके हैं. नाजुक तो रहे ही नहीं कहीं से. And I remember जब मैंने डॉक्टर तैयबा से ये डिस्कस किया तो हम रास्ते में जा रहे थे एक कॉन्सर्ट से पहले, तो डॉक्टर साहब ने कहा ओके आई विल डू इट, आई विल बी देयर फॉर यू. सो दैट्स वंडरफुल. दैट्स and Farheen, I would like to add that if there is one message or one decision that we should take from this whole event today, that is कि हमें national policies की ज़रूरत है. So we need a national drive for eradication of anemia. और हम सबको मिलके फिर उसके अंदर everybody should be included, the midwives, the doctors, the specialists, the nurses, everybody, and the government especially, and the societies. They should join hand and say no anemia in Pakistan. If you want to label it anemia free Pakistan, then it has to be a countrywide drive, and I think we should target that. That is then we are going to go places अगर हम anemia को eradicate कर सकें. हमारी औरतों की workforce, औरतों की utilization and the kind of work they can perform अभी ये anemia के साथ है. सिन्फ़े आहान हाँ जी. with the anemia. So if you have सिन्फ़े आहान without anemia, you will see the difference. बहुत ज़बरदस्त फ़र्क पड़ेगा. तो we need to eradicate anemia for women in our country. और आई थिंक कि आपके प्रोग्राम एक पहला टिकल होगा, तो इफ इट स्टेज ऑन तो आई थिंक वी आर गोइंग टू बी गोइंग टुवर्ड्स अ पॉलिसी इंशाल्लाह. डॉक्टर साहिबा और हाइनून ने हमेशा बहुत सी मेजर जो डिजीज़ हैं जैसे डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में स्क्रीनिंग के और बहुत से ऐसे थैलेसीमिया से रिलेटेड जो लोगों के साथ प्रोग्राम्स हैं उसमें पार्टिसिपेट किया है. एंड वेरी सून यू विल सी दैट हाइनून विल बी देयर फॉर इन द फाइट टू कम्बैट विद एनीमिया इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस. Thank you.